Today we'll be solving question number 7 from exercise 1C. Now the question says rationalize the denominator. The first sum given is 9 upon root 3. We have to rationalize the denominator. Means almost we have to take out the square root, or we have to simplify this. Now whatever denominator is given, we are going to multiply the denominator by numerator also and by denominator also. So this will become multiply and divide by root 3. Okay. So 9 into root 3 becomes 9 root 3 upon root 3 into root 3 is 3. Now here we can cancel this. This becomes 3 ones are 3 and this becomes 3 threes are 9. So we'll end up to our answer 3 root 3 upon 1, that is 3 root 3. Right? This was the simplest sum. Now second sum, 4 upon root 2. Follow the same procedure. Multiply and divide the given denominator on numerator side also and on denominator side also. 4 into root 2 becomes 4 root 2 upon 4. So this will be root 2. Our numerator is 4, denominator is root 2. We copied as it is and multiply this by root 2 and root 2. So 4 into root 2 becomes 4 root 2. Root 2 into root 2 becomes 2. We can cancel this by table of 2. This becomes 2 root 2. Right? Now third sum is 10 upon root 5. We are going to apply the same over here. Copy the sum as it is. Multiply and divide by the denominator number which is given. Now this becomes 10 into root 5 becomes 10 root 5. Root 5 into root 5 becomes 5. This becomes 5 ones are, 5 twos are. This becomes 2 root 5. We'll end up to the answer 2 root 5. Now we'll see the fourth sum. Fourth sum is a little different sum. The sum says the sum is 5 upon 3 minus root 2. Now here there are two numbers, one number and one number is under the root. Here we will take conjugate. अभी conjugate का मतलब होता है कि whatever denominator we have given we have to take that, but if we have to take the opposite sign. यहाँ पर माइनस साइन है तो हम जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पर बीच में प्लस साइन होगा. अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो हम माइनस साइन से करते. तो पहली स्टेप तो कॉपी द सम एज इट इज, मल्टीप्लाई दिस बाय डिनोमिनेटर. व्हाट वाज द डिनोमिनेटर गिवन दिस. पर हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है. मतलब अगर माइनस साइन है तो हमें यहाँ पर प्लस साइन लेना होगा और सेम मल्टीप्लाई करना है नीचे भी. राइट. नाउ इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट यू मे टेक इन अ सिंपल वे. पहले हम 5 3 करेंगे फिर इसे करेंगे. तो 5 3 बिकम्स 15. प्लस साइन है, प्लस साइन दे देंगे. प्लस 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 इंटू प्लस प्लस ही होता है. 5 इंटू रूट 2 बिकम्स 5 रूट 2 अपॉन. नाउ हियर 3. ये जो है ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में है. सो हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि है. सो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है. ओनली साइन का डिफरेंस है. मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है. सो व्हाट इज आर a स्क्वायर. 3 3 बिकम्स 9 और हमारा b जो है वो रूट 2 है. बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ माइनस बिकॉज प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस और रूट 2 इंटू रूट 2 बिकम्स 2. तो यहाँ पर 15 और
फाइव अगर हम देखें ये दोनों में, तो ये दोनों फाइव के टेबल में आते हैं, राइट. So this becomes 5. You may take 5 common if you want. If you don't want, you may directly write here 15 plus 5 root 2 upon 7. Okay. If you write this way, it is okay. If you take common 5 and write 3 plus root 2 upon 7, that is also correct. But we didn't simplify because even if we take 5 common, 5 और 7 एक टेबल में नहीं जाते कटिंग करने के लिए. So even if you keep your answer over here in same, it is correct. Now let's move to third sum. Third sum is of similar type. 3 upon 4 minus root 7. अब थर्ड सम में क्या दिया गया है, जैसे सम दिया है वैसे हम कॉपी करेंगे. अभी जो डिनोमिनेटर है वही लिखना है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके, बट साइन सिर्फ अपोजिट होगी, राइट. सो हियर इट इज 4 माइनस रूट 7, सो दिस विल बिकम 4 प्लस रूट 7 एंड दिस अगेन 4 प्लस रूट 7. जैसे मैंने कहा था कि हमें पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. सो हियर 4 into 3 becomes 12, right. Plus into plus is plus. This 3 or root 7, 3 into root 7 is 3 root 7 divided by, अभी ये a square minus b square के फॉर्म में. So what is our a square? 4 4 becomes 16 और ये है root 7 into root 7 which becomes again 7, right. और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप वी विल सिंप्लीफाई दिस फर्दर. दिस बिकम्स 12 प्लस, इसमें इन दोनों में कॉमन अगर लेना चाहो तो हम ले सकते हैं, राइट. इफ यू वांट यू मे टेक द थिंग्स कॉमन ईयर. ये दोनों टेबल कौन से टेबल में जाते हैं, ये दोनों 3 के टेबल में आ सकते हैं, राइट. दिस 2 may come in the table of 3. So let's take 3 common. तो यहाँ पर कितना बचा, 3 4 12 एंड 3 तो बाहर आया. ओनली रूट 7 इज रिमेनिंग ओवर ईयर. अगर आप चाहो तो ले सकते हो ये स्टेप. 16 माइनस 7, दिस बिकम्स 11, राइट. तो ये फाइनल आंसर है इस चीज़ का, बिकॉज ये दो कैंसलेशन में नहीं जाते, राइट. सो दिस वॉज फिफ्थ सम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स सी सिक्स्थ सम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. अभी हम 6 सम देखेंगे. 6 सम है 2 प्लस रूट 3. ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है बिकॉज यहाँ पर 2 डिजिट्स आए हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. एंड 4 माइनस रूट 3. पहली स्टेप तो कॉपी द सम एज इट इज, जैसे कि वैसे हम सम कॉपी करेंगे. सो क्या है सम? सम इज 2 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3, राइट. अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. जो नंबर दिया है वही डिनोमिनेटर का नंबर हम वैसे के वैसे कॉपी करेंगे, सिर्फ उसका कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब हम साइन चेंज करेंगे. वी आर गोइंग टू चेंज द साइन. नाउ हियर 4 minus root 3 is given. We are going to write 4 plus root 3, right. Done. अब हम इसे
सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली किया था एक्सपांड 5th और 6th क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एन एक्सपांड में, वैसे ही स्टेप्स फॉलो करते हैं। हम ये लेंगे और ये होल ब्रैकेट, फिर ये नंबर लेंगे और ये होल ब्रैकेट, तो 2 4 प्लस √3 प्लस साइन दिया गया है, प्लस साइन डालेंगे, √3 4 प्लस √3, we are going to divide this whole thing, right? और जब हम डिवाइड करेंगे ये पूरा, so this is in the form of a square minus b square, मतलब इसका फॉर्म क्या है, a square minus b square वाला फॉर्म है, right? Now let's check. 4 2s is 8. 4 2s becomes 8. और 2 into √3 becomes 2√3 बराबर. Now let's check. This bracket is solved, plus 4√3 √3 into √3 3, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, because √3 into √3 is 3. Let's solve it further. 8 plus 3 11, 4 plus 2 6 √3, बिकॉज हम एडिशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी √3 है, ये भी √3 है. अगर डिफरेंट रूट होते तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है. अपॉन 16 माइनस 3 होता है 13. So this is the final answer for sum number 6. So these were sums from sum number 1 to sum number 6 from question number 7, exercise 1C. Next lecture we will see further from sum number 7. Thank you.